Good morning, student. I am Dr. Indermal Goyal. Today we will discuss about calculation of amount payable to the retiring partner, outgoing partner, and payment to the outgoing partner. So, how you can calculate the total amount payable to the retired partner or a deceased partner? Amount payable to the outgoing partner can be calculated by preparing his capital account. Generally, in examination, question related to calculation of the amount payable to only one of the outgoing partner is asked, and sometimes we have to prepare partners capital account, all partners capital account, and the balance sheet of the reorganized firm after settlement of account of the outgoing partner, depending on the instruction given in the question. So our topic is calculation of amount payable to outgoing partner. We will prepare partners capital account, deceased partners capital account, or retiring partners capital account. We will write all items to be shown in the debit or credit side of the partners capital account. Date particular amount. Now, what are various items to be given, to be credited, to be paid to the outgoing partner? First of all, we will write the balance of partners capital account, outgoing partners capital account, given in the liability side of the balance sheet of the firm. As I have already told you that at the time of retirement or death of the partner, the balance sheet of the firm at end of the previous year will be given to you, because the retirement or death may be in middle of the year, after working for 4 months, 5 months or 6 months. In that case, all those items payable to the outgoing partner which are based on time, then we have to calculate for a period of 4 months or 5 months, or the total period for which he survived, total period for which he worked in the firm in the current year, just before the retirement or his death. तो by balance शीट, अगर आपका कैपिटल का बैलेंस पार्टनर का लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो we will write here as by balance शीट. लेकिन अगर कभी कभी पार्टनर्स का किसी का जो रिटायर हुआ या डेथ हो रही है, उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल अगर एसेट साइड में दिया हुआ है, इट इज ए मैटर ऑफ कैपिटल ओवरड्रॉन, तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय उसके डेबिट साइड में लिखेंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी. यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, ए फॉर एसेट साइड, लायबिलिटी साइड में होता तो क्रेडिट साइड में आएगा. अगर किसी पार्टनर का बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो एसेट साइड में दिया हुआ है, तो हम इधर इसको टू बैलेंस बीडी लिखेंगे. नाउ व्हाट आर
various items to be credited to the outgoing partner. So you know, when a partner retires, his total amount is credited to his capital account, and whatever is to be charged from him will be debited in his capital account. So now see what we give him. सबसे पहले हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। शेयर इन जनरल रिजर्व। अगर एक पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम फर्म की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो इट रेफर्स टू द accumulated profit of the past year, and share in general reserve will be given or will be credited to outgoing partner according to its P&L ratio. Suppose A, B, C तीन पार्टनर है और उनका रेशियो 5:3:2 है और B रिटायर हो रहा है तो B का रेशियो हो गया 3/10 और जनरल रिजर्व मान लीजिए 30,000, तो 30,000 का 3/10, 3 3 9,000, वो हम इधर लिखेंगे। मतलब जो पार्टनर जिसका हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसका जितना हिस्सा होगा वही इस खाते में लिखा जाएगा। तो ऐसे ही बैलेंस शीट में लाइब्रेरी में और कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व बाय रिजर्व फंड, और बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड में रिजर्व फंड होता है तो वो भी इधर आएगा, उसमें वही हिस्सा निकाल के। अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें भी उसका हिस्सा आएगा। अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से वर्कमैन का जो एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है कंपनसेशन देने के लिए उसको घटा दो और उसके बाद में जो पैसा बचता है तो दैट विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो हम इधर लिख देंगे। इसके अलावा एक पार्टनर को अगर वो मिडल ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है, पार्टनर इज रिटायरिंग आफ्टर 5 months या 6 month completion during the year, तो then he will entitle some time based amount जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाता है, तो जो पार्टनर को अमाउंट दी जाएगी ना वो उसके खाते में क्रेडिट की जाएगी, राइट। वॉट एवर अमाउंट इज पेएबल to the outgoing partner will be credited in his account. उसके अलावा सैलरी है, कमीशन है, फीस है, बोनस है, whatever you pay by interest on capital, by salary या बोनस जो भी उसको देना है, by commission अगर उसको प्रॉफिट में या कोई कमीशन मिल रहा था या कोई फीस मिलती है वो भी दी जाएगी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर देयर विल बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्म एंड देयर विल बी रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हेन ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड देन इट मे रिजल्ट आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है तो आउटगोइंग पार्टनर का रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट में जो हिस्सा है दैट विल बी क्रेडिटेड। हम यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट में जो हिस्सा पीटी लिख रहा हूँ, पीटी फॉर प्रॉफिट, वो इधर आएगा। तो बाय सैलरी, बाय वर्किंग कैपिटल, कमीशन, फीस, वर्कमैन कंपनी रिजर्व, रिजर्व फंड होगा। इसके अलावा अब जो डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा उसने लास्ट ईयर में क्लोजिंग डेट से लेकर करंट ईयर में रिटायरमेंट और डेथ से जस्ट पहले पहले जो भी उसने ड्राइंग की है वो डेबिट में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग, जो उसने ड्राइंग की, फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमने लगाया है तो वो भी डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर balance of profit and loss account is given in the asset side of the balance sheet at the time of retirement or death, so in that case that will also be distributed among the partners and the share of the outgoing partner in accumulated loss of the past year. We will write here to profit and loss account जो डेबिट बैलेंस है और जो एसेट साइड
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, वो भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर है, दैट इज इक्वलेंट टू लॉस, उसका हिस्सा भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आउटगोइंग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। So all those expenses which are paid in current year but the benefit of which is likely to be derived in the subsequent year, then such expenses are debited in a certain part in the P&L account and remaining part is written off over the periods in the few subsequent year. So unwritten off part is shown in the asset side of the balance sheet of the firm. At the time of the death or retirement of a partner, as part of the advertisement suspense account will be charged from the outgoing partner. So, अब अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ, it is to be written off at the time of admission also, at the time of retirement, at the time of death. गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है। अब गुडविल अकाउंट को अगर हमें बंद करना है तो वी विल राइट हियर टू गुडविल। आउटगोइंग पार्टनर का गुडविल में जो हिस्सा आएगा वो उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे, गुडविल अकाउंट। अब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी किया था एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी किया था। व्हेन ए पार्टनर रिटायर और व्हेन ए पार्टनर एक्सपायर, जब एक्सपायर हो जाएगा तब तो पूरा उसकी पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा, सब इंश्योर्ड है, उसको बांटना है, सारे पार्टनर में बांटेंगे। और अगर वो रिटायरमेंट होता है तब भी पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी और उसका जो सरेंडर वैल्यू मिलेगी उसमें हिस्सा मिलेगा आउटगोइंग पार्टनर को। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय शेयर ओवर लाइफ पॉलिसी। और अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी, डेथ हो जाती है या सरेंडर करना पड़े तो उसका भी जो हिस्सा मिलेगा वो हम इधर लिखेंगे बाय शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो इधर है। हाँ, इसके अलावा जो गुडविल है, क्योंकि वट एवर अमाउंट ऑफ गुडविल वाज गिवन इन द बैलेंस शीट इट विल बी रिटन ऑफ एंड द अकाउंटिंग एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बट व्हाट अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल जितना होगा उससे हमारी एंट्री होगी हमेशा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में आएगा बाय गेनिंग पार्टनर, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म में रिमेनिंग पार्टनर जो है वो हिस्सा देंगे किसको? आउटगोइंग पार्टनर। क्योंकि जो आउटगोइंग पार्टनर है ही विल बी द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन दिस केस। ऐसा साझेदार जो फर्म को छोड़कर जा रहा है वो अपना हिस्सा त्याग कर रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल में उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसे गुडविल कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे। किस रेशियो में देंगे? जिस रेशियो में वो उसका हिस्सा ले रहे हैं, दैट विल बी द गेन रेशियो। इसलिए एंट्री होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल से हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, तो यहाँ आएगा बाय गेनिंग पार्टनर या बाय रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल कह सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग में से सारे लोग गेनिंग हो सकते हैं या ओनली वन और टू हो सकता है। तो आई मस्ट राइट बाय गेनिंग पार्टनर, गेनिंग ऑब्लिक रिमेनिंग लिख remaining partners capital account। अब इसमें क्या क्या आएगा? गेनिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर। एक तो आएगा शेयर इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल, शेयर इन प्रेजेंट गुडविल।
और एक दूसरा जो सरेंडर वैल्यू है, जब हमारा इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी को एक पार्टनर की डेथ होगी, उसके पैसे मिल गए सारे, हमने एंट्री करी, जैसे मान लो बी की डेथ हुई तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लाइफ पॉलिसी, और बीज लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसकी इंडिविजुअल पॉलिसी में जो पैसा मिला वो भी सारे पार्टनर में बांटा जाता है। वाई? बिकॉज द प्रीमियम ऑन द लाइफ पॉलिसी वाज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. Profit of the firm is the result of the joint efforts of all the partners. That is why all the benefit derived from death of the partner and maturity of the policy will also be credited to all partners. तो इससे फिर क्या होगा कि जो बी की तो डेथ होगी, उसका पैसा हमने सब में बांटा, लेकिन ए और सी की पॉलिसी का प्रीमियम भी तो फर्म ने चुकाया था। इसलिए क्या करते हैं, उन ए और सी की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या है ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ बी, उन दोनों की सरेंडर वैल्यू पहले क्वेश्चन में दे रखी होगी, इंश्योरेंस कंपनी एवरी ईयर डिक्लेयर करती है, उन दोनों की सरेंडर वैल्यू को ऐड करके उसमें बी का हिस्सा कितना बनता है वो निकालेंगे, और उसके अमाउंट से भी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो शेयर इन सरेंडर वैल्यू विल आल्सो बी गिवन टू द आउटगोइंग पार्टनर by the remaining partner in their gain ratio. तो मैंने यहाँ लिखा by gaining of the remaining partner capital account, इसमें क्या जाएगा, शेयर इन प्रेजेंट वैल्यू गुडविल भी आएगा और शेयर इन सरेंडर वैल्यू अदर पार्टनर, शेयर इन सरेंडर वैल्यू समर्थन मूल्य, शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ अदर पार्टनर ऑफ अदर पॉलिसी, ये यहां दिखाया जाएगा। तो जैसे वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व आया, ऐसे ही अगर हमारा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट में कितना रुपया एक्सपेक्टेड लॉस उतना रिटेन कर देंगे और बाकी का जो पैसा है वो हम बांट देंगे। तो हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें भी हिस्सा हम इधर लिखेंगे। इसके अलावा अगर एक पार्टनर का डेथ मिडल ऑफ द ईयर हुआ तो ऐसी स्थिति में जो बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में पीएनएल का हिस्सा था, एसेट साइड वाला डेबिट में आ जाता है उसका हिस्सा, लायबिलिटी वाला क्रेडिट साइड में आ जाता है। लेकिन जस्ट बिफोर द डेथ और जस्ट बिफोर रिटायरमेंट इन द करंट ईयर ही हैज वर्कड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months, 4 months, 5 months, whatever is given in the question, so he will also entitled share in profit or loss of the current year। तो उसके लिए भी हम ये एंट्री वो शेयर इन गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही कर दें, या फिर आप उसको बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट जो आपने है 4 month का 5 month का, उसमें आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा निकालो और जो हिस्सा आता है वो आप इधर लिख दोगे बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख सकते हैं। ये करंट ईयर का प्रॉफिट का हिस्सा, और ऐसे अगर करंट ईयर में लॉस हुआ तो हम यहां लिखेंगे टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट फॉर शेयर इन लॉस ऑफ करंट ईयर, और वो हम इधर लिखेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ड्राइंग, ये जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा होता है तो उसको गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की जो एसेट साइड में लिखा हुआ होता है, और गुडविल भी जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखी हुई होती है, वो हम उनको राइट ऑफ कर देते हैं।
ऐसे ही जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में हिस्सा आएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन से लॉस आया तो आप लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सेल लॉस हम इधर लिख देंगे। If the firm has followed fixed capital method, in that case, there will be balance of both capital account as well as current account in the balance sheet of the firm. When the partner is retiring, then his total amount is payable to him. So balance of his current account will also be closed and transferred to his capital account. तो अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, बी रिटायर हो रहा है, बी का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है और कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, तो जैसे कैपिटल लायबिलिटी में दी गई तो हमने बाई बैलेंस शीट लिखा, एसेट्स हो गया तो बैलेंस शीट लिखा। ऐसे ही हमारा जो है, अगर मान लो करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस है तो फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी डेबिट नहीं होगा, ठीक है, ओनली फ्लक्चुएटिंग मेथड में होता है डेबिट बैलेंस। तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। अगर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हमारा लायबिलिटी में दिया हुआ बी का तो वो क्रेडिट है, अब हमें उसे बंद करना है, तो एंट्री क्या होगी, उसको बंद करने के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें उसको फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट करना है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बी करंट अकाउंट डेबिट या आउटगोइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या आएगा, बाय करंट अकाउंट, तो यहाँ लिखते हैं बाय करंट अकाउंट। कौन सा, जो लायबिलिटी साइड में एल लिखा है, और अगर उसका करंट अकाउंट का बैलेंस है ना एसेट साइड में दिया हुआ है, डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो वो डेबिट होता है तो उसको बंद करना है तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, टू करंट, और उसका बैलेंस इधर आ जाएगा कौन सा वाला, जो एसेट साइड में दिया है। तो ये हम इस तरह से किसी पार्टनर का जो अमाउंट कितना पेएबल है वो निकाल सकते हैं। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद में दूसरी प्रॉब्लम हमारी पेमेंट टू द आउटगोइंग पार्टनर। अगर हमने पेमेंट नहीं करना, अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू द आउटगोइंग पार्टनर, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम सीधा जो है लिख देंगे इधर टू बैलेंस पेमेंट, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। कभी कभी ऐसा देता है कि आप हिसाब कैलकुलेट करिए और उसमें से कुछ पार्ट पे कर दिया, तो जितना पेड कर दिया तो वो आ जाएगा टू कैश ऑब्लिक टू बैंक, तो इधर आ जाएगा। और अगर if the firm has no adequate financial resources, in that case a certain amount can be paid at the time of his death or retirement and the remaining partner may be paid in installment। तो वो एग्जीक्यूटर, अगर डेथ होगी तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बन जाएगा, और अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है तो वो लोन का पैसा उसको खुद को इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तब हम यहाँ देंगे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो वो इधर है। और अगर किसी आउटगोइंग पार्टनर ने एन्युटी एक्सेप्ट कर लिया, वार्षिकी द्वारा भुगतान स्वीकार कर लिया, तो फिर ऐसी स्थिति में हम यहां लिखेंगे पूरा हिसाब करने के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल आइटम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड वी विल राइट टू पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो जो रिटायर पार्टनर होगा, जैसे बी रिटायर हुआ तो हम लिखेंगे टू बी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, तो टू partners annuity suspense account, ANNUITY annuity suspense account।
So this is the way to calculate the amount payable to the outgoing partner. तो आप देखिए, जो साझेदार को, रिटायर्ड पार्टनर को हमें फर्म के माध्यम से उसको देना है, वो सारे अकाउंट उसके क्रेडिट में आएंगे, और जो जो उससे लेना है, वसूल करना है, वो सब डेबिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट में क्या है वो, सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी कैपिटल, फिर बाय जनरल लेजर, शेयर इन जनरल लेजर, बाय रिजर्व फंड जो लायबिलिटी में दिया हुआ है उसका हिस्सा, बाय पी&एल अकाउंट जो लायबिलिटी में दिया हुआ था उसका हिस्सा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट जो लायबिलिटी में दिया हुआ एक्स्ट्रा पड़ा है उसका हिस्सा, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन, बाय फीस जो लोग उसको दे रहे हैं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, बाय शेयर इन ओन लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी में मैच्योरिटी पे उसका जो पैसा मिलेगा या सरेंडर वैल्यू में जो हिस्सा मिलेगा वो इधर आएगा, बाय शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा वो इधर आएगा, फिर बाय शेयर इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल उसकी एंट्री होगी, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट वैल्यू में जो गुडविल है उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी हमेशा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, चाहे एडमिशन की बात हो चाहे रिटायरमेंट और डेथ की बात हो। तो गेनिंग पार्टनर कौन होगा, जिसको लाभ में हिस्सा, जिसका रेशियो है ना बढ़ रहा है, और सैक्रिफाइसिंग कौन होगा, जिसका हिस्सा कम हो जाता है या जो पूरा ही छोड़ कर जाता है। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, वन ऑफ द पार्टनर विल बी लीविंग द फर्म, ही विल बी कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उसका अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, रिमेनिंग और गेनिंग पार्टनर को, सर्वाइविंग पार्टनर, तो बाई करेंगे। तो जो उसको गुडविल में हिस्सा है वो भी देंगे, और जो सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी है, अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है और उनकी पॉलिसी में जो सरेंडर वैल्यू है उसमें हिस्सा उसको देना पड़ेगा, तो वो उससे सरेंडर वैल्यू ऑफ अदर पॉलिसी। और बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है तो वो भी है ना, उसको हिस्सा क्रेडिट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर दिया है वो भी उसमें क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा। करंट अकाउंट लायबिलिटी वाला क्रेडिट में आएगा, एसेट साइड वाला डेबिट में आएगा। एंड नाउ यू सी टू बैलेंस पीडी, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है और कैपिटल का बैलेंस किसी पार्टनर का डेबिट है तो इधर आएगा। फिर टू ड्राइंग, उसमें रिटायरमेंट और डेथ से पहले जो ड्राइंग करी वो आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे चार्ज करेंगे। उसका अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है फर्म में, बैलेंस शीट में एसेट्स में दिया तो उसका हिस्सा लिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया गया है तो उसको भी बांटा जाएगा, वो यहाँ डेबिट आएगा पार्टनर कैपिटल में। गुडविल जो बैलेंस शीट में दी गई थी उस खाते को बंद करना है, पार्टनर कैपिटल में डेबिट में आएगा, आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा आएगा ओनली। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यानी कि जो करंट ईयर में जो हमारा फर्म को लॉस अगर हुआ है तो उस लॉस में भी उसका हिस्सा जो उससे लिया जाएगा वो इधर आएगा। और अगर करंट ईयर में 3-4 महीने जो सर्वाइव किया उसमें प्रॉफिट हुआ फर्म को तो वो क्रेडिट करेंगे, बाय पी&एल सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। और ये पी&एल सस्पेंस है वो बैलेंस रीऑर्गेनाइज फर्म की बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिर बैलेंस पेबल लिख दिया, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो लॉस में हिस्सा है वो इधर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो हमने ये जो बैलेंस पेबल निकाला, केवल अमाउंट निकाली है तो बैलेंस पेबल ही आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लो उसको कुछ पार्ट पे कर दिया तो हम मोड ऑफ पेमेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट टू द आउटगोइंग पार्टनर। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर देयर आर टू बेसिक प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू द आउटगोइंग पार्टनर एंड सेकंड इज पेमेंट टू द आउटगोइंग पार्टनर। और पेमेंट के लिए हमें पैसा अरेंजमेंट करना पड़ता है, और अरेंजमेंट के लिए हमने विभिन्न मोड ऑफ अरेंजमेंट है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और पेमेंट कैसे करना है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू द आउटगोइंग पार्टनर। अब उसका मोड ऑफ पेमेंट वैसे 3 है, ब्रीफ में बता दूं। अगर हमने लमसम पेमेंट करना तो यही कैपिटल अकाउंट बना के, अगर फर्म के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है वी विल राइट हियर टू बैंक, उसको पूरा पेमेंट हो जाएगा। और पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट बन जाएगा। और अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं करना है तो एन्युटी भी दी जा सकती है, और तो 2 एन्युटी सस्पेंस अकाउंट लिख के ये हम ट्रांसफर कर देंगे। So this is about calculation of amount payable to the outgoing partner. So for calculation of the total amount payable to the outgoing partner, we prepare his capital account. So I am sure that we have covered
almost all the aspects related to calculation of the amount payable to the outgoing partner. And even if you have any doubt, you can call me, you can WhatsApp me. I will upload this video for your better knowledge. Thank you very much for watching this video. Thank you.